آئے ہم خدا کے کلام کی طرف دھیان لگاتے ہیں. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب اور اس کی 6 آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اور بائبل مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے, کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جائے. آمین. آپ سب بیٹھ سکتے ہیں. میرے عزیزوں, آج جو ہم نے روزے کے تعلق سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے, اس کا آج تیسرا سرمن ہے. اور آج ہم یسایہ 58 باب کو ڈیل کریں گے یسوع مسیح کے فضل سے. اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حقیقی روزہ. کیا ہے جی؟ حقیقی روزہ. ٹرو فاسٹنگ کے اوپر ہم چند لمحات کے لیے اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے, تاکہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کا کلام در حقیقت ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. تو آج کی جو کلیدی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور اگر اس کا 58 باب کا مرکزی خیال آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو لوگ یسایہ نبی کے وقت بھی روزہ رکھ رہے تھے. روزہ صرف یہ لینٹ سیزن نہیں ہے جو 40 روزوں کا ایک ابتدائی کلیسیا نے جو ایک قانون رائج کیا ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کیتھولک کلیسیا نے یہ رائج کیا ہے, لیکن 40 دن کے روزے کی جو جڑیں ہیں وہ بائبل ہی سے جڑی ہوئی ہیں, لیکن ایک کیلنڈر کی شکل میں رومن کیتھولک نے اس کو جو ہے ایک بنیاد بنا دی, اور آج ہمارے پاس ایک لینٹ کا ایک سیزن ہے. لیکن جب یسایہ نبی خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے وہ کیا ہے منادی کر رہے تھے, اور انہوں نے تب یہ منادی کی کہ تم نے روزہ کیسے رکھنا ہے. اب اس کے دور میں اور آج بھی اس دور حاضرہ میں بھی بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن ان کا جو ایکشن ہوتا ہے روزہ رکھنے کا وہ کوئی درست سمت میں نہیں ہوتا ہے. ان کی ڈائریکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے, جس کو تب بھی یسایہ نبی ایڈریس کر رہا تھا, اور آج میرے توسط سے شالوم پینتیکوسٹل چرچ کو یہ بیان کر رہا ہے کہ حقیقی روزہ در حقیقت کیا ہے, جس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہاللیلویا. تو لوگ آج یہ جو میجر جو ہیں اس سرمن کے 8 پوائنٹس ہیں, اور 8 پوائنٹ میں سے اس کے ہر پوائنٹ میں سے کچھ چند جو سب پوائنٹس بھی ہیں, ان پوائنٹس میں سے چند پوائنٹس ہیں جن کو آج ہم ڈیل کریں گے. اور آج جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا جو سب پوائنٹ ہے مذہبی رسم مقابلہ روحانی حقیقت. یعنی کہ یسایہ نبی جس وقت کی بات کر رہا ہے اس وقت لوگوں کا رجحان روزہ رکھنا تھا. لوگ روزہ رکھتے تھے, لیکن وہ روزہ ظاہری روزہ تھا, نمائشی روزہ تھا, اور مذہبی روزہ سمجھ لیں اس کو, اور وہ رسمی روزہ رکھتے تھے. اور در حقیقت بڑی عجیب بات کہ وہ دکھاوے کا روزہ رکھتے تھے, جو کہ آج بھی بہت سارے لوگ دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں. لیکن خدا کا کلام یسایہ نبی کے اوپر نازل ہوتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کیسا روزہ چاہتا ہے. خدا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری بنتے قوم کیسا روزہ رکھے. جب روزہ رکھے تو توبہ کرے, انصاف کا روزہ ہو, رحم کا روزہ ہو, اور عاجزی کا روزہ ہو. یہ ساری چیزیں
उस वक्त भी नहीं पाई जाती थी। और अफसोस की बात है, आज भी आपको ये चीजें ना घरों में, ना रिश्तेदारों में, और ना चर्चिस में, ना ऑफिस में, या कहीं भी किसी भी जगह पर आपको ये चीजें कहीं भी नजर नहीं आएंगी। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो मेजर है, रोजे की बाइबली समझ क्या है। इब्रानी लफ्ज जो रोजे के लिए इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज है सोम, और यही लफ्ज अरबी में भी रोजे के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसके लुग़वी मानी है खाने से रुकना, खुद को फरोतन करना, खुदा के हुजूर आजिज़ी इख्तियार करना। लेकिन बाइबल के मुताबिक रोजा सिर्फ खुराक से परहेज नहीं है, बल्कि रूहानी इनकलाब है। जब इनकलाब आता है ना, जब इनकलाब की बात करते हैं या रजीम चेंज की बात करते हैं, तो लोग उठ खड़े होते हैं, नारे लगाते हैं, पुकारते हैं कि चेंजिंग आए, चेंजिंग आए, चेंजिंग आए। और रोजा एक रूहानी इनकलाब है। अब ये क्या नारे लगाता है कि आपके अंदर जो बातनी शख्सियत है आपकी, वो जिस तरह भी हो सकती है, आप बखूबी जानते हैं, लेकिन कभी कभी चंद लोग भी जान लेते हैं, तब जब आपके रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं तो वो एनालिसिस करते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा किरदार कैसा है, उसी तरह जैसा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर कोई दरख्त है तो देख लेंगे, इम्तियाज कर लेंगे कि इसके ऊपर अगर हमें जजमेंट करनी कि ये दरख्त कौन सा दरख्त है, तो जो उसके ऊपर फल लगा होगा वही दरख्त होगा। तो इसी तरह इंसान का किरदार आपको बता देता है कि हम कैसे हैं। हालेलुया। बताने की जरूरत नहीं है, आपका किरदार बताएगा कि हम कैसे हैं। तो रोजा सिर्फ खुराक से परहेज ही नहीं है, बल्कि एक रूहानी इनकलाब है। जब आप रोजा रखते हैं तो अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाते हैं। रोजा बदन को मारता है और रूह को बेदार करता है। जब आप बेदार होते हैं तो आपके अंदर शऊर पैदा होता है, आप ध्यान ज्ञान लगाते हैं कि दुरुस्तगी किस में है और सही दिशा क्या है, डायरेक्शन किस में चलना है। तो रोजा आपकी जिंदगी में एक तहरीक पैदा करता है कि आपकी जिंदगी में रूहानी इनकलाब कैसे आएगा। और अगर आपकी जिंदगी में रूहानी इनकलाब नहीं आया है, आज से पहले भी आप उसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी कि आज ऑन द स्पॉट गुजार रहे हैं, और आप भूखे रह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जस्ट बदनी मुशक्कत और एक मजहबी रस्म के अलावा कुछ नहीं है। आप कुछ मर्जी कर लें, ये आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। और यही बात खुदा का बंदा 58 बाब पे वो डील करता हुआ नजर आता है। तो अगर आपकी जिंदगी में रूहानी इनकलाब नहीं है तो आपका रोजा बेफायदा है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, खुदा को ना पसंद रोजा। आप कहेंगे रोजा भी खुदा को नहीं पसंद, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हां, नहीं पसंद। ऐसा रोजा जो बाइबल की थियोलॉजी के मुताबिक नहीं है, वो खुदा को कतई तौर पर पसंद नहीं है। फास्ट, इसे नुक्ते का जो पहला पहलू है रूहानी, खुद गर्ज रोजा। यसाया 58 बाब उसकी तीसरी आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है, तुम अपने फायदा के लिए रोजा रखते हो। तुम अपने, हमारा ख्याल यही होता है कि बस अपने फायदा होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं रोजा सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं रखा जाता। मतलब लोग रोजा रखते थे, कारोबार जारी थे, जुल्म जारी था और खुदगर्जी जारी थी। खुदगर्जी सिर्फ अपना ही फायदा सोचना,
और इंसान अपना फायदा सोचकर रोजा रखता है और ये तवक्कुआत करता है खुदा से कि जो मैं उससे मांग रहा हूं, मैंने अपने बदन को दुख दिया है और वो चीज मुझे मिल जाएगी। तो मैं आपके सामने वाशगाफ अल्फाजों में ये बात रखना चाहता हूं, आप जितना मर्जी अपने आप को कोड़े लगा लें, अपने आप को सलीब पर चढ़ा लें, अगर खुद गर्जी रोजा है और सिर्फ आपका ही बेनिफिट है और 10 बंदों का नुकसान हो जाएगा, तो खुदा कभी आपके दिल की मुरादों को पूरा नहीं करेगा। खुदा कभी आपके दिल की मुरादों को पूरा नहीं करेगा। खुदा कभी आपके दिल की मुरादों को पूरा नहीं करेगा। तो ये रोजा क्या है? खुद गर्ज रोजा है। बेवजह आप ज्यादा मुशक्कत लोगों से लेते हैं और जुल्म करते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, हर तरह के जुल्म करते हैं। तो जब आप इस तरह का रोजा रखते हैं तो सिर्फ भूख काट रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका यसाया कहता है कि कोई फायदा ना आपको होगा और ना किसी और को होगा। तीसरे जो पॉइंट का जो दूसरा रूहानी पहलू है, झगड़ों वाला रोजा। झगड़ों वाला हालेलुया हुंदा कि नहीं हुंदा? यसाया उसका 58 बाब उसकी 4थी आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम रोजा रखते हो मगर झगड़े और लड़ाई करते हो। तो अंडरस्टैंड कर ले, जब आप ये करते हैं तो कोई रोजा होया नहीं, यानी जुबान बदस्तूर गुनाह में मुब्तला है। जब आप झगड़े वाला रोजा करते हैं या दुआएं करते हैं तो जुबान बदस्तूर गुनाह में मुब्तला है, दिल नफरत से भरा हुआ है। ऐसा रोजा आसमान तक नहीं पहुंचता। ऐसा एक कोठे तो बाहर नहीं जाना, आसमान तक कितने जाना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यसाया कहता है ये काम अगर आप करते हो तो बदनी मुशक्कत है, ना करो, कोई फायदा नहीं है। तीसरे पॉइंट का जो तीसरा रूहानी पहलू है, दिखावे का रोजा। यसाया 58 बाब उसकी 5वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है, क्या ऐसा रोजा मुझे पसंद है? यहां लोग क्या कर रहे थे? टाट पहनते थे। टाट पहनना क्या होता था कि एक बकरी का एक चमड़ा होता था, उसको अपने ऊपर वो रख लेते थे। वो जो कपड़ा होता था, जिस तरह आजकल बोरियां होती है ना, बोरियां, वो बोरी नुमा एक कपड़ा होता था, तो वो अपने ऊपर रख लेते थे और क्या खाक में बैठते थे। लेकिन क्या करते थे? उनके दिल तब्दील नहीं होते थे। वो जाहिर करते थे हम बड़े गमगीन हैं, हमने तौबा कर ली है, हमने मातम कर लिया है, असी हुण अच्छा वो तौबा इंज दी करते सी जिवें दी अज असी तौबा करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਤੋਬਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਜੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਇੰਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹ ਲਈ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੋਬਾ करा देनी। समझ आ रही है ना? लेकिन हम ये करते हैं, आप टाट हो लेते हैं, बड़ा नारे लगाने, बड़े ऊंची बातें करनी, खाक में बैठ जाना, आजिज़ी ज़ाहिर करना कि बैठा। आजकल के माशरे में क्या होता है? आज के माशरे में खाक में कोई नहीं बैठता, मट्टी नहीं लगाता। आज के माशरे करते ऊंची नारा मारना, फकिया फरीसिया तरह ऊंची दुआवां, बड़े लफ्ज, दर्शन छोटे। प्लीज इस तरह की बातें नहीं करना, इस तरह की बातें नहीं करें। आप पहचाने जाते हैं, फिर शर्मिंदा होते हैं। वो भी तब शर्मिंदा हो रहे थे और यसाया उनको शर्मिंदा कर रहा था। दुकानें बंद करो, कारोबार ये बंद करो, ये जो मजहबी कारोबार है बंद करो। आज भी जो मजहबी दुकानें हैं मेरे अजीजों, बंद कर दो प्लीज। इस मेकअप का कोई फायदा नहीं है। जब आप पानी का छट्टा लगाएंगे, मेकअप उतर जाएगा और असलियत सामने आ जाएगी भाई। क्योंकि रोजा पोशीदा होता है, खुदा को दिखाना। हमें क्या दिखाना है? आप किसी को दिखा के कोई पैसे मिल देंगे, क्या फायदा है? कोई फायदा है? क्यों एक बंदा कहे जी फायदा सानू चे नारे लाने दा थे, कोई फायदा नहीं। जिसके लिए आप आते हैं उसको दिखाएं,
जिसके लिए आप दुआ करते हैं उसको उस तक दुआ पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए आप रोजा रखते हैं उस तक ये रोजा जाना चाहिए। इस एक कोठे तक नहीं जाता तो समान ते कितने जाना, अंडरस्टैंड कर रहे? तो यसाया कह रहा है खाक पे बैठते थे लेकिन दिल तब्दील नहीं होता था। ये जस्ट रिलीजियस परफॉर्मेंस थी उनकी और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी उनकी। ये जस्ट रिलीजियस एक परफॉर्मेंस थी, एक मजहबी अदाकारी थी, रियाकारी थी, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूहानी तब्दीली नहीं थी। इसलिए खुदा कहता है यसाया से कि कह दे कि ऐ रोजे ना रखो तुसी, क्योंकि झगड़ियां ना भरे हुए ने, गलती जुबाना ना भरे हुए ने। ऐ मैनू पसंद नहीं, क्योंकि मुझे रिलीजियस परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे रूहानी तब्दीली चाहिए। अंदरों किवें बदले हो, अंदरों तौबा हुई है, अंदर कोई भाग लगे ने कि बाहर ही लवाई फिर दे, अंदरों भी कोई बूटा उगया है रूहानी, अंदरों पानी देंदे हो, रूह दे फल आए ने, रूह दा बीज बोया गया, उनकी गोडी करदे पे हो, ओनू हल चलांदे पे हो, पाक रूह दा की वधांदे पे हो, ताकि उस पौधा बढ़े ते उनदे उत्ते टहनियां ते परिंदे बसेरा करन। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਵਧੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो एक मुहावरा था कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐ साडी वैल्यू हो जाती है ना, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ। तो जब आपकी स्पिरिचुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिसिटीज और आपकी जो आपकी जो इज्जत शोहरा है आपकी दूर दराज फैलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तो रोजा रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते। चौथा पॉइंट, खुदा को पसंद रोजा जो है, खुदा को ट्रू फास्ट क्या है, ट्रू फास्टिंग क्या है? यहां खुदा हकीकी रोजे की तारीफ करता हुआ नजर आता है। चौथे पॉइंट का जो पहला रूहानी पहलू है बंधन तोड़ने वाला रोजा, बंधन तोड़ने वाला रोजा। यसाया नबी का सीफा उसका 58 बाब उसकी 6 आयत का जब मुताला करते हैं तो लिखा है बदी की जंजीरों को तोड़ता है। रूहानी मतलब गुनाह की गुलामी को तोड़ता है, शैतानी बंधन तोड़ता है, जुल्म खत्म करता है। और पेंटिकोस्टल नुक्ता यह है कि स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू का जरिया बनता है, रूहानी पेशरफ्त होती है, इनकलाब आ जाता है और आपके अंदर एक ऐसा रिवाइवल आ जाता है कि आपके हाथ रखने से लोग शिफा पाते हैं, हीलिंग का काम होता है, बंधन टूटते हैं, नामुमकिनात काम मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं और हर तरह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो बाउंड्रीज है वो टूट जाते हैं यीशु के नाम से। रोजा वो रोजा है जिसके वसीला से स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू आता है। और अगर आज आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में से गुलामी खत्म नहीं हुई, आप आज भी गुनाह के गुलाम हैं, गुनाह के गुलाम हैं। अगर आपकी जिंदगी से परेशानियां खत्म नहीं हो रही तो आपको चेक करने की जरूरत है प्रॉब्लम कहां पे है, जो कि हम नहीं करते हैं। एक नुक्ता है करना चाहिए आपको, मैंने जस्ट आपको लेके चलना है, मैं एक चीज को नहीं करूंगा आपकी जिंदगी से, ना तो आप मुझे ये इख्तियार देंगे और ना ही मैं ये इख्तियार दूंगा। मैंने पुलपिट पे चढ़ के मुनादी जरूर करनी है लेकिन आपकी जिंदगी को मैं तब्दील नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपकी जिंदगी से मैं बड़ा मुतासर जरूर हो सकता हूँ और मुतासर कैसा होता हूँ वो भी आप सबको पता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, बहुत अच्छा ही मुतासर होता हूँ। और चौथे पॉइंट का जो दूसरा रूहानी पहलू है मजलूमों को आजाद करना, मजलूमों को आजाद करना। ये रोजा इंसाफ लाता है, इंसाफ करना बड़ा। मैं अक्सर कहता हूँ ना यार कि हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना करूं, वो एडी ना भैड़ी कर दे मैनू यकीन नहीं, मेरा दिल करता तो सच बोलना जरूरी है।
मैं तो नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता कि वो कैसी दुआएं करते और केड़े बंदे ने भैड़े बंदे ने उन्होंने इस पासे ला देता। मुझे तो बंदा लग जाए ना तो फिर उन्होंने समझाऊं। आप हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना कहना सीखिए। अगर आप ये नहीं करते तो अपने आप चेक करो कि खादम या खादमा कोई नहीं किया है, यकीन जाने आप पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, बाइबल का खुदा ये नहीं बताता। ये रोजा इंसाफ लाता है। इंसाफ खुदा ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वो सलीब पर को तो खुदा का इंसाफ और रहम साथ साथ चल रहा था। और हमें भी ये तालीम दी गई, इंसाफ और रहम साथ। इंसाफ आपने करना है, हाँ गलत को गलत कहना है और साथ में उसके लिए दुआ भी करनी है। खुदा उसको नेकी की दे देता कि तौबा कर ले। भाई ये नहीं कर सकते है ना, असि उनकी जगह आप तो तौबा नहीं कर सकते ना, वो तो तौबा करा देंगे। तो कैद दिलों को आजाद करता है रोजा। आप जो कैद हो चुके हैं ना इब्लीस के हाथों जंगलों में, वो रोजा जो है जो नहीं रखते वो रखे, और ऐसा रोजा रखे ताकि कैद दिलों को आजाद कर सके। और यही खिदमत बाद में यीशु ने बयाबान की। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 4वां बाब और उसकी 18वीं आयत का जब मुताला करते हैं, उसने लिखा उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई की खबरी दूं, खुशखबरी दूं। और इसका चौथे पॉइंट का जो तीसरा रूहानी पहलू है सिखावत वाला रोजा। चैरिटी करनी बड़ी जरूरी है। 58 बाब की 7वीं आयत का मुताला करते हैं कि भूखे को रोटी देना ये रोजा है। भूखे को गरीबों की मदद किया करें, मस्कीनों की खिदमत करें, और मोहब्बत की अमली शक्ल यही है। अगर आप रोजा रखते हैं और सखावत नहीं करते हैं तो, और चर्च में या इर्द गिर्द या सराउंडिंग में या कहीं भी, तो मुझे लगता है कि आपको चेक करने की जरूरत है कि आप रोजे के जो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे हैं। हकीकी रोजे की बरकतें क्या होती हैं? 5वां पॉइंट, जब रोजा सही तरीके से किया जाए या रखा जाए तो खुदा वादे देता है। वादे देने से मुराद है कि जो ब्लेसिंग्स उसने देने का वादा किया हुआ है आपकी जिंदगी में वो देगा। हालेलुया, वो देता है, देगा नहीं देगा। अब 5वें पॉइंट का पहला रूहानी पहलू और रूहानी रोशनी। यशायाह नबी का सीफा उसका 58 बाब उसकी 8वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो लिखा तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी, मतलब रूहानी बसीरत आपकी जिंदगी में आएगी, रूहानी आंखें खुल जाएगी। इतने सही अखां नहीं खोलती है तो रूहानी खें खुलती है। किसी को बता दो ना बच्चे तंग कर रहे हैं, कोई कहता ही कोई नहीं, ठीक है मैं अन्ने हूं, कहते नहीं खुली आने खां, दिल नहीं करता कुछ कहने किसी लोग करते तो रूहानी अखां कितने खुलनी है। तो अंडरस्टैंड करें, रूहानी आंखें तब खुलती हैं जब रूहानी बसीरत आती है, और ये तब आती है जब खुदा की रोशनी आपकी जिंदगी में नाजिल होना शुरू हो जाती है। यानी कलाम के ऊपर आप मेडिटेट और अमल करना शुरू करते हैं। हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना। रूहानी बसीरत आती है, खुदा की रहनुमाई होती है, अंधेरे का खात्मा हो जाता है, अंधेरे का खात्मा हो जाता है। 5वें पॉइंट की जो दूसरा रूहानी पहलू है शिफा आती है। तेरी सेहत जल्द बहाल होगी, रूहानी और जिस्मानी शिफा दोनों। कुछ लोग रूहानी बीमार होते हैं और कुछ लोग जिस्मानी बीमार होते हैं। जिस्मानी बीमारी तो दवाइयों से चली जाती है, रूहानी बीमारी जल्दी नहीं जाती। तो यकीन जाने चर्चेस में रूहानी बीमार ज्यादा है चर्चेस में, और आपको रूहानी बीमार ज्यादा नजर आएंगे। रूहानी बीमारी ज्यादा है, इसका इलाज करना बड़ा जरूरी है, और इसका इलाज दुआ और रोजे के बगैर नहीं हो सकता। दुआ और रोजे के बगैर रूहानी इलाज नहीं हो सकता है। 5वें पॉइंट के तीसरा जो रूहानी पहलू है खुदा की हजूरी। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। जब रोजा सच्चा होगा तो खुदा जवाब देगा। दुआएं ताकतवर होती हैं और आसमान खुलते हैं। हालेलुया। जब रोजा सच्चा हो तो दुआएं ताकतवर होती हैं और आसमान खुलता है। क्यों आसमान नहीं खुलता? क्यों एलिया के लिए आसमान खुल गया? क्योंकि उसकी दुआएं सच्ची थी, और दुआएं सच्ची होती हैं तो फिर क्या होता है? आसमान खुलता है। आसमान खुलता है। आपके लिए क्यों आसमान नहीं खुल रहा? इसलिए कि हम सच्चा रोजा नहीं रखते और हमारी दुआओं में ताकत नहीं होती और आसमान नहीं खुलता है। हालेलुया। आसमान नहीं खुलता है। सातवां पॉइंट, यीशु मसीह में हकीकी रोजा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी में
हकीकी रोजा क्या है? यसु ने भी यही तालीम दी। मत्ती 6 बाब उसकी 16वीं और 18वीं आयत का मुताला करते, दिखावे का रोजा मना है भैया, पशीदा रोजा पसंद है। यसु खुद 40 दिन रोजा रखते हैं और फिर शैतान पर फतह याब होते हैं, और यसु मसीह की खिदमत ही फास्टिंग से जारी सारी होती है। यानी खिदमत तक पहुंचने के लिए आपको फास्टिंग करना जरूरी है, रोजा बड़ा जरूरी है अगर आपने खिदमत के मैदान में अपने कदम जमाने हैं तो। दुआ और रोजा, दुआ, प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग। 8वां पॉइंट क्या है? हकीकी रोजा सिर्फ भूख बर्दाश्त नहीं करना है, दिल की तब्दीली है, इंसाफ कायम करता है, गरीबों की खिदमत करता है, गुनाह से तौबा करता है और रूहुल कुद्स की तलाश करता है। कितने लोग रोजा रखते हैं और यकीन जाने रूहानी नेमतों की तलाश में रहते हैं। कभी किसी ने क्या खुदावंद मैनू दीनदारी सिखा दे, मैं आज कल ही रोजा रखा जी, मैं ईमानदार बनना है अपने घर नाल भी ते चर्च नाल भी। किन्ने लोगों ने कहा जी मैं रोजा रखा कि चर्च नाल ईमानदारी करनी, दसो मैं। मुश्किल बात है। कितने लोगों ने कहा कि खुदावंद मैनू अकल आ जाए, हिकमत मैनू मिल जाए ताकि मैं सही डिसीजन कर सका। हिकमत का कलाम रोजा रखा कर, इन चीजों को खुदावंद ऐ मिल जाए, खुदावंद मैनू ओ मिल जाए, खुदावंद इंज हो जाए, उंज हो जाए।